آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خوب برکت ہو، آپ کے کاروبار میں برکت ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ کے گھر میں بارش کی طرح برستی رہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی بھر 1 روپے کے لیے بھی کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، حتیٰ کہ کسی سے قرض بھی لینے کی ضرورت نہ پڑے، تو آپ کو یقیناً پھر یہ کام ضرور کرنا پڑے گا، اور وہ کام یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، گھر میں برکت کے لیے یہ 10 کام ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یہ 10 کام کر لیتے ہیں تو آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کی ہر ایک چیز میں برکت ہوگی۔ آزمانے کے لیے ہی صحیح، یہ 10 کام کر کے آزما کر دیکھیں تو صحیح۔ آزماتے آزماتے آپ دیکھیں گے کہ کیسے برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو گیا ہے۔ محترم ناظرین، یقین مانیے دنیا میں ہر انسان کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ اس کے گھر میں خوشحالی ہو، برکت ہو، سکون ہو، اور کبھی بھی تنگ دستی یا پریشانی کا سایہ اس کے آنگن میں نہ آئے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا کاروبار خوب چلے، اس کی تجارت دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے، اس کے رزق میں اتنی برکت ہو کہ کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ آپ بھی شاید اسی سوچ میں مبتلا ہوں گے کہ آخر وہ کون سا راز ہے، وہ کون سا وظیفہ ہے، وہ کون سا نسخہ ہے جس سے گھر میں خوشحالی اور برکتوں کا نزول ہو جائے۔ آپ کا دل بھی شاید یہی چاہتا ہوگا کہ ایسی کوئی بات پتہ چلے جس سے آپ کی زندگی بدل جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ کیا واقعی ہی زندگی بھر کے لیے بے فکری اور خوشحالی کا راستہ موجود ہے؟ آج میں آپ کو ایسی حقیقت بتانے والی ہوں، ایک ایسا راز جسے جان کر شاید آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں۔ آپ کا دل چاہے تو فوراً اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو، خوشیوں کی بہار ہو، اللہ کی نعمتیں بارش کی طرح برسے، اور آپ کی اولاد کی زندگی بھی سنور جائے، تو پھر آپ وہ 10 کام ضرور کرنے ہوں گے آپ کو، جنہیں اگر آپ نے اپنا لیا تو رب کعبہ کی قسم آپ کبھی زندگی میں کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ آپ کو نہ کبھی قرض کی ضرورت پڑے گی، نہ کبھی کسی سے مانگنے کی نوبت آئے گی، بلکہ آپ دوسروں کو دینے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ٹھہریے، یہ اتنا آسان بھی نہیں جتنا سننے میں لگ رہا ہے۔ یہ 10 کام جاننا اور ان پر عمل کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، لیکن اگر آپ نے ہمت کر لی، نیت کر لی، تو پھر دیکھیے گا کہ کس طرح آپ کے گھر میں برکتوں کا نزول شروع ہوتا ہے، اور ہر دن خوشیوں، سکون اور نعمتوں کی بہار لے کر آئے گا۔ آزمانے کے لیے ہی صحیح، ان 10 کاموں پر ایک بار عمل کر کے دیکھیں، پھر خود دیکھنا کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے گھر میں بارش کی طرح برسنے لگیں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ 10 کام کون سے ہیں؟ بس دل تھام لیجئے، کیونکہ ابھی میں آپ کو وہ سب کچھ بتانے والی ہوں جس کا جاننا آپ کی زندگی بدل دے گا۔ گھر میں برکت کے لیے یہ 10 کام ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلا کام، نماز کی پابندی کرنا۔ نماز صرف اللہ کا حکم ہی نہیں، بلکہ یہ رزق میں برکت کا سب سے پہلا اور اہم ذریعہ ہے۔ جس گھر میں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کی جائے، وہاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز مومن کی معراج ہے، یہ انسان کو رب سے جوڑتی ہے اور دل کا سکون بن جاتی ہے۔ نماز نہ صرف آخرت سنوارتی ہے بلکہ دنیا میں بھی زندگی کو آسان اور خوشحال بنا دیتی ہے۔ جو بندہ نماز کا پابند ہوتا ہے، اس کی دعائیں اللہ جلدی سنتا ہے، مشکلات آسان کرتا ہے، اور رزق میں ایسی راہیں کھول دیتا ہے جو بندے نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی۔ آج جو لوگ بے برکتی، پریشانی اور قرض میں جکڑے ہوئے ہیں، ان میں سے اکثر نے نماز چھوڑ رکھی ہے۔ نماز چھوڑنا گویا اللہ سے تعلق توڑ دینا ہے۔ سوچیں، جس کے ہاتھ میں دینے کا اختیار ہے، اگر آپ اس سے تعلق ہی توڑ دیں تو کہاں سے رزق آئے گا؟ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت کا نزول ہو، رزق کبھی ختم نہ ہو، تو آج سے توبہ کریں اور 5 وقت کی نماز کی پکی نیت کریں۔ دیکھنا اللہ کیسے آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا، اور آپ کے گھر میں سکون، محبت اور خوشحالی ہوگی۔ گھر میں برکت کے لیے یہ 10 کام ضرور کیجیے گا۔ دوسرا کام، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اور جس گھر میں قرآن پڑھا جائے وہاں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے، رحمتیں نازل کرتا ہے اور رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والا شخص اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس دل میں قرآن ہوتا ہے وہ دل کبھی غافل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اس دل کو زندہ رکھتا ہے۔ جو شخص روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اس کی زبان سے دعائیں نکلتی ہیں، اور وہ دعائیں اللہ کے عرش تک پہنچتی ہیں، جس سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ گھروں میں دن رات موبائل، ٹی وی اور گانے بج رہے ہیں، لیکن قرآن پاک کی آواز سنائی نہیں دیتی۔
जिस घर में कुरान ना हो वहाँ बेबरकती, बीमारी और नहुसत आ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हर दिन बरकत हो, रिस्क कभी ख़त्म ना हो, तो रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत को अपनी आदत बना लें। चाहे एक सफ़ा ही क्यों ना पढ़ें, चाहे एक रुकू पढ़ें, लेकिन रोज़ाना ज़रूर पढ़ें। फिर देखना कैसे अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा करता है, बरकतों की बारिश होती है। तीसरा काम, सदका और खैरात करना। सदका देने से माल कभी कम नहीं होता, बल्कि जो शख्स अल्लाह की राह में देता है, अल्लाह उसके माल में 700 गुना तक इजाफा फरमाता है। हदीस कुदसी है, ए आदम के बेटे खर्च कर, मैं तुझ पर खर्च करूँगा। जो शख्स हर महीने, हर हफ्ते या रोज़ाना सदका देता है, अल्लाह उसके रिस्क में ऐसी बरकत देता है कि खुद बंदा हैरान रह जाता है। सदका ना सिर्फ बलाएं और मुसीबतें टालता है, बल्कि रिस्क के दरवाजे भी खोल देता है। आज के दौर में हम इतने मादा परस्त हो चुके हैं कि सदका देते हुए सोचते हैं कि कहीं माल कम ना हो जाए। यही सोच असल में बेबरकती का सबब बनती है। याद रखें, अगर चाहते हैं कि कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, तो सदके को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। हर रोज़ चंद रुपए निकालें, चाहे किसी यतीम को दें, किसी गरीब को दें, या किसी मुस्तहिक रिश्तेदार की मदद करें। जब अल्लाह की राह में देंगे तो अल्लाह आपको वहाँ से देगा जहाँ से आपने कभी गुमान भी ना किया हो। चौथा काम, वालिदैन की खिदमत और उनकी दुआएं लेना। वालिदैन दुनिया में जन्नत का दरवाज़ा है। जिसने अपने वालिदैन की खिदमत की, उनका दिल खुश किया, अल्लाह ने उसके रिस्क में बरकत लिख दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन जन्नत और जहन्नुम का दरवाज़ा है। जिसने चाहा जन्नत में दाखिल हुआ और जिसने चाहा जहन्नुम में चला गया। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और उनकी खिदमत ना सिर्फ दुनिया में रिस्क बढ़ाती है, बल्कि आखिरत में जन्नत का सबब भी बनती है। वालिदैन की दुआ अर्श को हिला देती है और अल्लाह फ़ौरन कबूल फरमाता है। जो लोग आज बेबरकती, कर्ज और परेशानियों में डूबे हुए हैं, वो ज़रा अपना जायज़ा लें कि कहीं अपने वालिदैन का दिल तो नहीं दुखाया। वालिदैन की नाफरमानी करने वाला कभी दुनिया में सुकून और रिस्क की फरावानी नहीं देखता। अगर चाहते हैं कि रिस्क में ऐसी बरकत हो तो जो नस्लों तक चले, तो आज से वालिदैन की खिदमत में लग जाएं। उनके कदमों में जन्नत है, उनके चेहरे को मोहब्बत से देखना भी इबादत है। फिर देखना रिस्क के दरवाजे कैसे खुलते हैं और तुम्हारे घर में खुशियाँ कैसे आती हैं। पांचवा काम, सुलह रहमी, यानी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक और ताल्लुक़ जोड़ना। सुलह रहमी यानी रिश्तेदारों से ताल्लुक़ जोड़ना रिस्क में इजाफे और उम्र में बरकत का मुजर्रब नुस्खा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाहता है कि उसके रिस्क बढ़ा दिया जाए और उसकी उम्र में बरकत हो, तो वो सुलह रहमी करे। लेकिन अफसोस, आज हम मामूली बातों पर रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ लेते हैं। कभी जायदाद के झगड़े, कभी अना की लड़ाई, कभी बेजा गुस्सा, और रिश्तेदारों के साथ साल हा साल बोल चाल हम बंद कर लेते हैं। फिर रोते फिरते हैं कि ज़िंदगी में बरकत नहीं, कारोबार में नुकसान हो रहा है, बीमारियों ने घर को घेर लिया है। याद रखें, जिस घर में सुलह रहमी हो, वहाँ अल्लाह ताला खुश होता है और रिस्क के दरवाजे खोल देता है। जो रिश्तेदार के साथ मेल मिलाप रखे, उनके दुख सुख में शरीक हो, उनकी मदद करे, अल्लाह उसे कभी मोहताज नहीं करता। अगर चाहते हैं कि आपके रिस्क में आप बरकत हो और नस्लों तक वो रिस्क चले, तो आज से ही दिल बड़ा करें, अना को छोड़ें, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ जोड़ें। फिर देखना अल्लाह कैसे गैब से रिस्क के ख़जाने आपके लिए खोल देता है। छठा काम, सच बोलना और झूठ से बचना। रिस्क में बरकत का एक अहम राज सच्चाई है। जो बंदा सच बोलता है, उसके कारोबार में, उसके रोज़गार में, उसकी हर बात में बरकत होती है। हदीस मुबारक है, सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ। जो शख्स झूठ बोलता है, अल्लाह उसके रिस्क से बरकत उठा लेता है, उसके कारोबार में नुकसान आता है और बेसुकूनी उसका मुकद्दर बन जाती है। क्योंकि झूठ बोलकर वक्ती फ़ायदा तो मिल सकता है, लेकिन यह फ़ायदा देर पा नहीं होता, बल्कि आखिरत के साथ दुनिया भी बर्बाद हो जाती है। आज हमारे बाज़ारों में झूठ इतना आम हो चुका है कि लोग कस्में खाकर झूठ बोलते हैं, माल की तारीफ़ें करके धोखा देते हैं। नतीजा यह निकलता है कि ना घर में सुकून रहता है, ना दिल को इत्मीनान। अगर चाहते हैं कि तुम्हारे कारोबार में, तुम्हारे रिस्क में बरकत हो, तो आज से ही सच बोलने को अहद करो। झूठ, फरेब और धोखा छोड़कर अल्लाह का वादा है, जो सच पर कायम रहेगा, अल्लाह उसे इज्जत देगा और गैब से रिस्क अता करेगा। सातवां काम, हलाल कमाओ, हराम से बचो। रिस्क में बरकत तभी आती है जब कमाई हलाल हो। जो शख्स झूठ, धोखा, सूद, रिश्वत या हराम कमाई के ज़राए अपनाता है, उसके रिस्क से बरकत उठा ली जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो गोश्त हराम माल से पला हो, वो जन्नत में नहीं जाएगा। सोचो, जो रिस्क बच्चों को खिला रहे हो, अगर वो हराम होगा तो
तुम्हारे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। ना दीन रहेगा, ना दुनिया, ना बरकत होगी, ना सुकून। आज के दौर में लोग समझते हैं कि माल जितना भी आए, चाहे हलाल हो या हराम, बस आना चाहिए। यही सोच बेबरकती की जड़ है। याद रखो, हराम कमाई चंद दिन तो फ़ायदा दे सकती है, मगर ज़िंदगी भर की बरकत ले जाती है। अगर चाहते हो कि तुम्हारे घर में अल्लाह की रहमत बरसे, नस्लें नेक हो, रिस्क बढ़े, तो हलाल कमाने का पक्का इरादा करो। हलाल रोज़ी में जो सुकून है वो दुनिया की किसी दौलत में नहीं। 8वां काम, अल्लाह का शुक्र अदा करना। अल्लाह का शुक्र अदा करना वो अजीम अमल है जो नेमतों में इजाफा करता है। कुरान मजीद में साफ फरमाया गया है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। लेकिन तुम में से अक्सर लोग शिकवे शिकायत में ज़िंदगी गुजार देते हैं। कम तो तनख्वाह होने का शिकवा, कभी कारोबार ना चलने का शिकवा, कभी बीमारियां, कभी महंगाई। शिकवा करने से नेमतें कम होती हैं, जबकि शुक्र करने से नेमतें बढ़ती हैं। जो बंदा हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह उसे गैब से रिस्क देता है। चाहे गुर्बत हो, बीमारी हो, परेशानी हो, शुक्र करने वाला कभी महरूम नहीं रहता। शुक्र करने से दिल का सुकून बढ़ता है, अल्लाह के करीब होने का एहसास होता है और रिस्क में ऐसी बरकत आती है कि अकल दंग रह जाती है। इसलिए आज से शुक्र को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीखो, फिर देखना अल्लाह कैसे तुम्हें नेमतों से नवाजता है। 9वां काम, सुबह जल्दी उठना और दिन का आगाज़ जल्दी करना। सुबह का वक्त बरकत वाला वक्त है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत रखी गई है। जो शख्स सुबह जल्दी उठता है, फजर पढ़कर अपने कामों में लग जाता है, अल्लाह उसके दिन में बरकत डाल देता है। सुबह जल्दी उठने वाला ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होता है, बल्कि उसके कारोबार, रिस्क और ज़िंदगी में भी बरकत आती है। जो लोग देर तक सोते रहते हैं, उनका दिन नहुसत के साथ गुजरता है, दिल बेसुकून रहता है और रिस्क में कमी आती है। कभी आजमा कर देखो, 1 महीना फजर के साथ उठो, नमाज पढ़ो और अपने दिन का आगाज़ करो। अल्लाह की कसम, तुम्हें खुद महसूस होगा कि काम में लगन बढ़ गई है, जहन खुला खुला लग रहा है और रोज़ी के दरवाजे खुलते जा रहे हैं। दिन भर जो काम मुकम्मल ना होते थे वो खुद ब खुद होने लगेंगे। इसलिए सुबह जल्दी उठने को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो, फिर देखना बरकत तुम्हारे कदम चूमेगी। 10वां काम, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा और तवक्कुल करना। रिस्क के दरवाजे खोलने का सबसे बड़ा राज अल्लाह पर तवक्कुल है। जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसे वहाँ से रिस्क देता है जहाँ उसने कभी सोचा भी ना हो। कुरान में फरमाया, जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। आज लोग पैसा, नौकरी, कारोबार पर तो भरोसा करते हैं, लेकिन अल्लाह पर भरोसा कमज़ोर हो चुका है। इसलिए बेबरकती, परेशानियाँ और कर्ज ने हमें जकड़ लिया है। अगर चाहते हैं कि ज़िंदगी भर रिस्क की तंगी ना आए तो अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल सीखो। याद रखो, अल्लाह ही देने वाला है, वो चाहे तो ज़मीन और आसमान के ख़जाने तुम्हें दे दे। अगर दुनिया के सब लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएं, लेकिन अल्लाह तुम्हारे साथ हो, तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। इसलिए आज से दिल से अल्लाह पर भरोसा करो और तवक्कुल करो, फिर देखना रिस्क, इज़्ज़त, खुशियाँ सब तुम्हारे कदमों में होंगी। या अल्लाह, ए आसमान और ज़मीन के मालिक, ए बेनियाज रब, ए वो ज़ात जिसके ख़जानों में कभी कभी नहीं आती, ऐ वो जिसका दर हमेशा खुला रहता है। हम तेरे ही दर के फ़कीर हैं, तेरे सामने हाथ फैलाए बैठे हैं। या अल्लाह, हमारी ज़िंदगी के हर रास्ते में आसानी फरमा, हमारे रिस्क में बरकत और खैर अता फरमा, हमें हलाल, पाकीज़ा और बाबरकत रिस्क नसीब फरमा। या अल्लाह, हमें कभी किसी इंसान का मोहताज ना बना। या रब, हमें कर्ज़, फ़कीर, मोहताजी और परेशानियों से महफूज रख। हमारे घरों में, हमारे कारोबार में, हमारी औलाद में, हमारी ज़िंदगियों में ऐसी बरकत अता फरमा कि कभी तंगी ना आए, कभी महरूमी ना आए। या अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें सेहत अता फरमा, जो बेरोज़गार हैं उन्हें बेहतरीन रोज़गार अता फरमा, जो मकरूज़ हैं उनका कर्ज अदा कर दे, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक और सालेह औलाद अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।